Hi and hello everyone. In this video we will learn midpoint theorem. Midpoint theorem of quadrilateral chapter number 8 in class 9. So midpoint theorem. Midpoint theorem is about the triangle in which the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. It means there is a triangle in which there are midpoint of any two side. If you join them, that line is parallel to the third side and half of that third side. So now let's prove it. How to? First of all, draw a triangle ABC in which D and E are the midpoints of side AB and AC. Join DE and extend this line, extend D line up to the point F in such manner that the line segment DE equal to EF. It means how much you need to extend this DE line equal to DE. यानी DE का जो मेजरमेंट है सेम उतना का उतना ही आपको EF लाइन को ड्रॉ करना है, यानी उसे एक्सटेंड करना है उसे F पॉइंट तक. F पॉइंट और C पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, दैट इज द पैरेलल टू दिस DB. अब वो हमको पहले तो प्रूव करना है कि पैरेलल है या नहीं है. Now see, let's see in this two triangle ADE and CEF. the AD equal to DB क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है AB लाइन का, एंड AE इक्वल टू CE क्योंकि EB मिड पॉइंट है AC लाइन का. तो हमने D और E पॉइंट को जब ज्वाइन करा तो दैट इज लाइन सेगमेंट DE. इस DE लाइन को हमने एक्सटेंड करा, किसके इक्वल करा, जितना DE है उतना ही EF, यानी दोनों ये इक्वल है. तो अब बात करते हैं अपन टू ट्रायंगल्स की. ट्रायंगल AED एंड CEF. इन दीज टू ट्रायंगल AE equal to CE, A equal to CE because E is the midpoint of AC. Then angle AED equals to angle CEF. Angle of triangle AED angle, and then another angle CEF of triangle CEF. Both are equal because of vertically opposite angle. Two straight lines are intersecting each other. So there two non-adjacent angles which are opposite angles are equal. So you will say that are vertically opposite angles. Now see here, DE equal to EF. D equal to EF जो हमने कंसिडर करते हुए बनाई थी, यानी as much as D है same EF line. So by these three condition, two lines equal and one angle is equal. So by side angle side, these two triangles are congruent. Triangle AED congruent to triangle CEF. Now after proving that these two triangles are congruent, we can say that each and every part of these two triangles would be equal by CPCT, corresponding part of congruent triangle. So here AD equal to CF, AD equal to CF, and angle ADE equal to CFE. Now see here, angle ADE and then angle CFE. This is the shape of Z. ये A, D से लेके F पर, फिर F से लेके C पर ये एक शेप बन रहा अपना Z का. Z means wherever this type of angle, it means that angles are alternate interior angle. बट ये दोनों एंगल से इक्वल, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इक्वल. इसका मतलब AD और CF ये क्या हुई, पैरेलल हुई. सो नाउ सी, AD equal to CF and ADE equal to CFE angles. So now D is the midpoint of AB. अब यहाँ पर जो AD है इक्वल्स टू AB है क्योंकि D मिड पॉइंट है इसका.
अब देखिए डी बी इक्वल टू सी एफ, यानी ए डी इक्वल टू डी बी है और डी बी इक्वल्स टू सी एफ। ये जो डी बी देख रहे हैं ये बिल्कुल इस सी एफ के इक्वल है, क्योंकि ए डी इक्वल है सी एफ के, तो यानी कि डी बी इक्वल है सी एफ के, यानी ये अपोजिट साइड्स हो गई किसकी, क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ डी के। तो अब देखिए डी एफ इंटरसेक्ट ए डी एंड एफ सी, जो डी एफ लाइन है जो अपन यहाँ पे अभी जेड शेप बताया था मैंने, तो डी एफ जो लाइन है दैट इज इंटरसेक्टिंग ए डी एंड एफ सी, जो अपना जेड शेप बन रहा है रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई, जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका मतलब कि ये जो दो लाइंस हैं ए डी दैट इज पैरेलल टू एफ सी, ये अपन ने पैरेलल्स लाइन की थ्योरम्स में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। इफ़ alternate angles are equal then that two angles are parallel. If parallel lines are there then alternate interior angles are equal. It means these two are vice versa. So here AD is parallel to FC. अब AD this is the part of AB line, तो यानी कि BD वो पैरेलल हुआ किसके, CF के, यानी DB is parallel to CF. From first and second, both sides are equal as well as parallel. It means one pair of opposite sides is equal and parallel to each other. So it is parallelogram. It means DBCF is a parallelogram. यानी कि यहाँ पर जो DBCF है क्वाड्रिलेटरल वो एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, सो डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। जो अपन टॉप में लाइन देख रहे हैं डी एफ और जो नीचे बेस है बी सी, दोनों इक्वल और पैरेलल हैं। अब डी ई और ई एफ ये दोनों भी इक्वल हैं, यानी ई तो डी एफ का मिड पॉइंट है, यानी हाफ ऑफ डी ई, सॉरी हाफ ऑफ डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई। जैसे अब डी और बी सी दोनों पैरेलल हैं तो डी ई है हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी इक्वल टू डी एफ है और डी ई हाफ ऑफ डी एफ है, तो इसका मतलब ये इन दोनों का हाफ जो है डी ई और ई एफ हुए। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डी ई लाइन पैरेलल भी है बी सी के और डी ई लाइन हाफ भी है बी सी के। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट थ्योरम। अब आते हैं अपन सेकंड पे, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है, वाइस वर्सा, यानी थ्योरम 2, जिसमें क्या कह रहे हैं, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट। यानी लाइन ड्रॉ करिए आपने मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक साइड से ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट है डी, वहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी अपन ने बी सी के, यानी वो पैरेलल लाइन उस थर्ड लाइन को, यानी थर्ड लाइन यहाँ पर ए सी है उसको इंटरसेक्ट करेगी और जो थर्ड लाइन पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो होगा उसका मिड पॉइंट। अब देखिए इसको अपन कैसे प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे हमको सिंपल सा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी and draw a parallel line through D point such that it is parallel to BC। अब अपने को इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी तो वहाँ पे अपन जहाँ पे अपन पॉइंट को जो नाम दे रहे हैं दैट इज़ ई पॉइंट। अब मान लेते हैं कि ई इज़ नॉट द मिड पॉइंट, यानी वो ई मिड पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो है लेकिन अपन उसको मान लेते हैं कि वो मिड पॉइंट नहीं है। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में डी मिड पॉइंट है ए बी का और ये अपन ने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। अब इस पे अपन ए सी लाइन पर दूसरा पॉइंट है जैसे ई प्राइम, उसको मान लेते हैं कि ई प्राइम है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो इट मीन डी ई प्राइम, यानी डी ई प्राइम जो लाइन है डैश डैश में मैंने बनाई है दैट इज़ पैरेलल टू बी सी। लेकिन अभी अपन ने एक लाइन बनाई थी पैरेलल डी ई, वो भी पैरेलल है बी सी के, यानी यहाँ पर दोनों लाइन पैरेलल हैं बी सी के। अब
फर्स्ट और सेकंड से दोनों लाइन है पैरेलल BC के, यानी ई होना चाहिए मिड पॉइंट, जबकि हमने माना कि ई चलो माना नहीं है मिड पॉइंट, जबकि वो तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने उसको माना था वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूडेड दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस DE and DE prime are both parallel to line BC. This is a contradiction to the parallel line axioms. So our supposition is wrong. यानी कि दोनों उसमें पैरेलल है, जबकि हमने एक को माना था कि वो नहीं है, वो पॉइंट ही नहीं है मिड पॉइंट, जबकि ई प्राइम इसका मिड पॉइंट अगर मान लेते हैं। अगर वो दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब कि जो ई प्राइम है वो पॉइंट यानी ई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. I think everyone is clear with these two theorems. Theorem 1 and 2 both are same. वाइस वर्सा बिल्कुल, कि आपने मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द अनदर लाइन एंड पैरेलल लाइन वुड इंटरसेक्ट थर्ड लाइन एंड दैट वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट थर्ड लाइन। जो हमने पहले में पढ़ा था कि किसी भी टू लाइन्स के, एनी टू लाइन्स ऑफ ए ट्राइंगल, if you are joining midpoint, then that line segment is parallel to the third line and that line is half of that third line. So thank you very much everyone for watching this video, and if you liked it then like it and share to